یہ تو سائنٹیفک پارٹ تھا جو ہم نے اس کو ابھی تک پڑھا ہے، یہ سائنٹیفک پارٹ تھا. سائنٹیفک پارٹ میں ہم نے دیکھا اس کی پیتھولوجی بھی ہے، فزیو پیتھولوجی بھی ہے، ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، فزیولوجی بھی دیکھ لی ہے. تو سارے کمنٹس بھی ہم نے اس کے لے لی کہ کہاں پہ جا کے کیا یہ کر رہا ہے، اور اس کا فزیولوجیکل ایکشن بھی دے لی کہ 4-5 جو ایکشنز ہیں جو اس کے خاص سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم کے حوالے سے کام کرنے والے وہ بھی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جنرل، ٹھیک ہے، جو جنرل سمٹمز ہمیں ملتی ہیں، جنرل جو بات چیت ہوتی ہے، جنرل جو ہم پوری دنیا میں بات کرتے ہیں، آرنیکا کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ ہم لیں گے جنرل کے حوالے سے. جنرل سمٹم، جنرل پارٹ ہمارے پاس جی. جنرل پارٹ میں ہمارے پاس آتا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ. ابھی تک ہم نے سائنٹیفک بات کی، ٹھیک ہے، یہ بھی سائنٹیفک ہے لیکن ہم اس کو ذرا تھوڑی سی تھیوریز کے ساتھ کوریلیٹ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جنرل پارٹ میں لے کے چلے آتے ہیں. اس کے ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹیمپرامنٹ میں نروس ٹیمپرامنٹ اس کا پیدا ہوتا ہے. نروس تو یہ ٹیمپرامنٹ اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چاروں ٹیمپرامنٹس اور بھی پائے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے اس کے میاض کے حوالے سے بھی پڑھے ہوئے. تو ہم اس میں دیتے ہیں یہ کالرک ٹیمپرامنٹ بھی ہے، میلنکولک بھی ہے، فلیگمیٹک بھی ہے، سینگوائن بھی ہے. چاروں پانچوں طرح کے ٹیمپرامنٹس اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. میاض اس کا کیا ہے؟ 16. اس کے بیک گراؤنڈ میں 16 پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھرمل چینجز میں اس میں ہم دیکھتے ہیں ریئیکشن دیکھتے ہیں تو یہ پیشنٹ چلی ہوتا ہے، اس کو سردی بہت محسوس ہوتی ہے. ریمڈی جو ہے خاص طور پہ یہ بڑے لوگوں کی اولڈ ایج لوگوں کی، ٹھیک ہے. ابھی چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا بچہ ہے اور اس کی بات کریں تو ہم اس کو استعمال کروانا اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم ہم اس کو استعمال کروائیں گے. لیکن زیادہ کس کی طرف رجحان ہوگا؟ بڑے لوگوں کی طرف، کیونکہ بڑے لوگوں نے 50 60 سال 70 سال اپنی زندگی دی ہوئی ہے اور اس میں اوور ایگزرشن بہت زیادہ ہوئی ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے. ان کے مسکولر کی پرابلم اور ایک 6 سال کے بچے کی مسکولر پرابلم ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ان کے اسٹمک کا اور 70 سال کے بچے بندے کا اسٹمک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ شیپ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے چلی پیشنٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پر بوڑھے لوگوں کی یہ ریمیڈی ہوگی. اور اس میں ڈیوریشن آف ایکشن جو ہے وہ 6 سے 10 دن تک ہے. اب 6 سے 10 دن تک جو ہے مریض کو دوائی استعمال کروائیں گے تو اس کے بعد یہ اپنا کام کرنا شروع کرے گی. یہاں تک آ کے اس نے کہا 6 دن میں کام کر سکتی ہے یا 10 دن میں. اگر اس سے پہلے وہ اگر آپ کا کوئی سائن سمٹم بڑی اچھی ہائی پوٹینسی میں خاص طور پہ اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ اگر اچھی پوٹینسی آپ کی مل جاتی ہے اور اچھی اکارڈنگ ٹو سائن سمٹم مل جاتا ہے تو اگر 24 آور میں کام کر جائے تو ویل اینڈ گڈ. نہیں کام کرتی تو آپ نے 6 دن کا ویٹ لازمی طور پہ کرنا. اس کے بعد نیکسٹ پروسیس دیکھیں گے، ٹھیک ہے. دوائی کو چینج کرنے کا فائدہ کانسٹیٹیوشن. اب ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن فزیکل اسٹرکچر کی. فزیکل اسٹرکچر کی بات کریں تو فزیکل اسٹرکچر میں یہ ہائیڈروجن آئن کانسٹیٹیوشن ہے. ہائیڈروجن آئن میں کیا ہے؟ اس میں ہائیڈروجن آئن کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے. ہائیڈروجن آئن کی زیادتی ہے اور اس کا گرفوگل کا جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے ہائیڈروجن آئن ہے، آکسیجن آئن ہے، ٹھیک ہے، کاربوجن آئن ہے، اس طریقے کی جو ہسٹری ہے وہ مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ بیسٹ سوٹڈ ٹو نروس ویمن. ہم نے نروس ٹیمپرامنٹ کی بات کی تو نروس ویمن اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں ایک بہت اعلیٰ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو آرمیکا کو نروس پیشنٹس کے لیے زیادہ ریکمنڈ کرتے ہیں. جی اب سینگوائن پیلورک پرسن. سینگوائن پیلورک پرسن میں with lively expressions and very red face, especially adapted to those who remain long impressed by even slight mechanical injuries and who are disposed to cerebral congestion. وہ لوگ جن کی سیریبرل کا کنجیشن رہا ہو، اس کے چہرے کی ایک تاثرات، چہرہ بھرا ہوا، خون سے پھول ہے اور پلیدرک ہے، سینگوائن ہے، جیسے بہت زیادہ فون لوگ ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے لوگ جو ہم بات کریں تو اگر ایک گورے کو بات کریں تو اس میں اچھا خاصا وہ سمجھ میں آتے ہیں بہت زیادہ ریڈ ہے، یا لیپسس کی طرح کا چہرہ اس میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ریڈ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ جو لوگ زیادہ دیر تک کسی انجری کا شکار رہے ہوں یا کسی سیریبرل کنجیشن کا شکار رہے ہوں تو ان میں یہ چیزیں جو ہیں انہیں مل سکتی ہیں. یہ زیادہ پلیدرک پرسن میں اور سینگوائن پلیدرک پرسن میں رہیں. جی اسینشیل فیچرز اس کے. اسینشیل فیچرز میں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو مین تھیم آرمیکا کا سمپٹمٹولوجی کا ریوالوز اراؤنڈ اے ڈیپ ٹرامیٹک ایکسپیرینس. ڈیپ ٹرامیٹک ان کی لوگوں پہ ہر چیز چوٹ لگی ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، اگر اٹیک لگی تو تھوڑا جو برباد ہونے لگے، لیکن ایسی چوٹ کہ جس میں وہ کچلا کے، ٹھیک ہے، انجری ہو گئی اچھی خاصی اس میں
ट्रॉमा हुआ, तो उस ट्रॉमा में क्या होता है, ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें फिजियोलॉजी, इमोशनल, वो फिजिकल क्या होगा, एक्सपीरियंस कहाँ पे लेंगे, ट्रॉमेटिक कहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है उसका, फिजिकल है या फिर इमोशनल है या फिर उसका मेंटल बॉडी पे है, ठीक है, या मेंटली है। तो मेंटली पे ट्रॉमेटिक खासतौर पे एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरीज, फॉल्स, लॉस, कंफ्यूजन्स, फ्राइट, फियर, फाइनेंशियल लॉस एक्सेट्रा। 100 का नुकसान हुआ, 200 का नुकसान हुआ, बाज़ लोगों का 1000 का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है, और बाज़ का लाखों का नुकसान, 2000 का। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब ये मामला हैं कि जहाँ पे फिजिकली बात हो रही है, जहाँ पे फिजिकली बॉडी की बात हो रही है, वहाँ पर इसके मेंटलिटी की भी बात हो रही है। तो मेंटलिटी पे, फाइनेंशियल लॉस पे भी बहुत ज़्यादा काम करने वाली ये मेडिसिन है, और इस पर अगर फियर है, फ्राइड है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने वाली ये मेडिसिन है, क्योंकि ये खास तौर पे जो काम कर रही है, कैपिटलिस पे काम कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव पे जो काम कर रहे हैं, जो आर्निसिन की हमने बात की है, जो हाइलिनाइन की बात की है, उसके हवाले से ये जो अल्कलाइड है उसको भी ठीक कर रहा होता है। एक आपके पास फाइनेंशियल लॉस का पर्सन आ जाता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता, तो सेम लाइक आप समझ लेंगे ये आदमी का कंडीशन में डेवलप है, आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। एटियोलॉजी क्या है, इसकी मैकेनिकल इंजरीज हैं, मैकेनिकल इंजरीज पाई जा रही होती है, मैकेनिकल इंजरीज में इसके साथ साथ जो हमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पाया जा रहा है, खासतौर पे ऑन लेवल ऑफ बॉडी पे, फिजिकल बॉडी जितनी भी है उसके जितने भी लेवल्स हैं उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जितने भी लेवल उसमें पाया जा रहा है, इमोशनल, मेंटल या फिर फ्राइड है, फियर है, फाइनेंशियल लॉस है, इस पे ये एटियोलॉजी यहाँ पे घूम रही है। ये आप समझ लें कि आदमी का यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। इतनी ही अगर आप जिसको हम कहते हैं की नोट सिम्टम, अगर की नोट सिम्टम की हम बात करें तो जो बंदा इस चीज़ को याद कर रहे हैं, ये जो इसकी एटियोलॉजी याद कर लेता है, किसी बीमारी की एटियोलॉजी याद कर ले, वजह सबब जिसको हम कहते हैं वजह, पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव एजेंट, एटियोलॉजी, ठीक है, ये चीज़ अगर याद कर ली गई तो समझ लें कि आदमी का जो है वो आपकी अजबर होगी, याद होगी। और इसको याद करने के लिए चंद एक चीज़ें हैं, मैकेनिकल ट्रॉमा है, एक्सपीरियंस का लेवल है, इमोशनल है, मेंटल है, फ्राइड है, फाइनेंशियल लॉस है, यही इसके एटियोलॉजी चलेगी। लिटरली आर्मी का जो काम कर रही होती है, इसकी साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हासिल है। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की सिम्टम राइट साइड की तरफ, राइट साइड की सिम्टम लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है लेटरल के हवाले से, तो लेटरल में, लेटरलिटी में यूनिलेटरली स्पेशली लेफ्ट साइड, खास तौर पे ये लेफ्ट साइड पे काम करती है यूनिलेटरल पे, और उसमें लेफ्ट साइड पे कौन सा काम करेगी, टेम्पल पे, लेफ्ट टेम्पल पे, चेस्ट पे, फार रिब्स पे, फिंगर्स पे, हाफ ऑफ क्यूबिक एमिनेंस, ठीक है, क्यूबिक एरिया का जो हाफ एरिया है लेफ्ट साइड पे उस तरफ, हिप की तरफ लेफ्ट साइड की टिबिया, आउटर साइड ऑफ फुट, लिटिल टो, ठीक है, लिटिल टो क्या है, सबसे छोटी उंगलियां, एंड वन, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जाकर उसको कर रही होती है। तो ये जो चीज़ है इसको काम कर रही है। आउटर साइड ऑफ द फुट की बात इसलिए की है, अब पाँव है तो अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तरफ तो उसमें एंड वाली जो फिंगर होगी उसको जाकर डिस्टर्ब करेगी। जी नेक्स्ट देखिए, राइट साइड की बात करें, राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में हेड आ जाता है, इसकी ब्रोज आ जाएंगी, ब्रो आ जाएगी, चीक्स आ जाएंगे, चीक आ जाएगा, बैक, रिस्ट, हैंड, थंब, कॉफ एंड आउटर मेनियलस मसल्स आ जाएंगे। इसकी आउटर मेनियलस की बात हो रही है, लेटरल मेनियलस की बात हो रही है, जिसको पंजाबी में जो भी है वो आप कह सकते हैं, इसको जीटा टाइप कह सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ जो है इसकी भी पेन अगर आ जाती है, और इसमें अक्सर जो खिलाड़ी लोग हैं आपको इसकी इंजरी जो है मिलेगी, ठीक है, अक्सर लोगों को खिलाड़ियों को ये चीज़ मिलेगी। डायगोनली लेफ्ट अपर एंड राइट लोअर, ये क्या करती है, ये क्रॉस वाइज चलती है, क्रॉस वाइज, ये क्रॉस वाइज चलती है, ठीक है जी। अगर इसका लेफ्ट अपर साइड की लेफ्ट है और लोअर साइड की जो है वो राइट साइड जो है वो इफेक्टेड होगी, तो हम कहेंगे कि ये आर्मी का इस तरीके से आपको डायगोनल जो सिम्टम है वो आपको मिलते हैं। तो डायगोनल में ये सिम्टम आपको लाजमी मिलेगा कि लेफ्ट साइड का अपर है और लोअर साइड का राइट है, ठीक है, राइट साइड का लोअर है।
जी। सेंसेशन, सेंसेशन क्या महसूस होती है? सेंसेशन होती है स्टमक के अंदर, सेंसेशन करते हैं प्रेस्ड अगेंस्ट स्पाइन, ऐसे जैसे कि स्पाइन की तरफ जो वो पेट धंसा हुआ है। और एक सेंसेशन आपको ये मिलती है फीटस लेइंग क्रॉसवाइज, ये इसका फीटस जो है वो क्रॉसवाइज लेटा हुआ पड़ा होता है और इसकी जो फीटस की इसमें बचेगी। अब आर्मी का गायनेकोलॉजी में काम क्या कर रहा है? आर्मी का गायनेकोलॉजी में काम क्या कर रहा है? हम बात करेंगे आर्मी का गायनेकोलॉजी में। गायनेकोलॉजी में आर्मी का की एक इंडिकेशन है कि आपने आर्मी का को कब इस्तेमाल करना, कब नहीं इस्तेमाल करना। अगर ये 6-7 महीने में, 8 महीने में ऊपर की बात है, 5 महीने 6 महीने, तो उसमें ये अगर फीचर सिक्योरिटी का लेंथ पड़ा हुआ है, क्रॉसवाइज पड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन में आकर आप आर्मी का जो इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसकी दर्दों को बेहतर कर सकते हैं। ये पेन होगी क्योंकि ये जब अंदर करता है तो अच्छा खासा फीमेल नौजिया महसूस करती है, पेन भी महसूस करेगी। और औसत असर क्या जानती है? की नोड है इसका, देखो सोरनेस। की नोड आप इसका इमेजिन कर लें, इसको आप याद रख लें। सोरनेस इसमें बहुत ज्यादा है। आफ्टर एनी इंजरी फील सोरनेस, किसी भी इंजरी के बाद जितनी ज्यादा सोरनेस आप इसकी महसूस करेंगे, माइंड का माइंड में fears such as feels that anyone approaching him with hurt him। सोरनेस की बात कर रहे हैं, सोरनेस में इतनी सोरनेस आ रही है, यहाँ पे ये बात कर रहा होता है जी किसी भी तरीके का कि ये बंदा इतना फियर महसूस करता है, सोरनेस में इतनी दुखन होती है कि वो अपने पास भी किसी को आने नहीं देता। कहता अगर ये मेरे पास आ गया तो मुझे हर्ट करेगा, मुझे तकलीफ पहुंचाएगा, इसलिए दूर ही रहे। ठीक है, बॉडी के हवाले से बेड फील्स टू हार्ड, रेस्टलेस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन, सोर, लेम, ब्रूस्ड, फीलिंग विद और विदाउट इंजरी। अगर इंजरी नहीं भी हुई, इंजरी नहीं भी हुई या हुई है तो उस सूरत हाल में महसूस करता है कि इंतहाई ब्रूस हो चुका है, इंतहाई कुचला जा चुका है, कुचले जाने से लेम हो चुका है, लबड़ाहट आ चुकी हुई है ऑर्गन्स के अंदर, पट्टों के अंदर, मसल्स के अंदर, और कॉन्स्टेंटली बेड उसको हार्ड लगता है और अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है, 70 साल का बाबा है, बेचारा क्या करता है, पोजीशन चेंज करता रहता है। बाबा जी सो नहीं जाते, अभी भी सोते नहीं, नींद नहीं आ रही, क्या हुआ, बिस्तर सख्त है, क्या हो रहा होता है उस वक्त उसके मसल्स पेन कर रहे होते हैं, मसल्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, हड्डियों में पेन आ रही होती है, जिसकी वजह से वो चेंज कर रहा होता है। और अगर चोटें लगी हुई हैं तो उसको हम बात कर सकते हैं कि जो बंदा बाहर से अच्छी खासी मार खा के आया हो, लड़ाई झगड़ा करके आया हो और एक बंदे को 5-7 बंदों ने अच्छे तरीके से मारपीट की हो, हंट चढ़ी हो मार की, ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, ये उस 70 साल बाबे की तरफ हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। Logically, an injured person is fearful of being touched. ये आम सी बात है ना, आम सी बात है। इंजर्ड पर्सन जो होता है, जिसको चोट लगी है, साइकिल से गिरा है, उसने बैंडेज की हुई है, ठीक है, स्लिंग लगाई हुई है, तो आप एक बंदा उसकी तरफ भागता हुआ आता है, वो डर जाता है यार मुझे आगे लगना जाए, ये कंडीशन होती है। सेम लाइक यही कंडीशन, ये एक लॉजिकली बात, ठीक है, सेम लाइक इसी तरीके से आदमी का डेवलप होता है। कहता है whoever the some might cause pain, there is over sensitiveness, बहुत ज्यादा, अभी उधर वो उधर उधर अभी नहीं आना, ठीक है। तो सेम लाइक जो आर्मी का कंडीशन एंड अ स्ट्रॉन्ग समटाइम्स एंग्री रिएक्शन, और बाद में उसका रिएक्शन जो है वो अच्छा खासा गुस्से वाला हो जाता है। गो अवे एंड लीव मी अलोन, आई एम ऑलराइट इवन व्हेन दे आर क्लियरली नोन। ये तकलीफ भी होता है, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है इसको कि ये जो बंदा इसके पास आता है उसको कहता है भाई मेरी तरफ ना, मेरी तरफ ना, मैं ठीक हूँ, हालांकि ये हम भी जान रहे होते हैं कि पेशेंट ठीक नहीं है, जो उसकी तरफ जा रहा है उसको भी पता है कि पेशेंट ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कहता नहीं कि आप उधर ही रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कंडीशन आर्मी के अंदर डेवलप हो चुकी होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्यूट ट्रॉमा, सीढ़ियों से गिर गया, उसके लिए भी आर्मी का, चलते हुए पाँव फिसल गया, उसके लिए भी आर्मी का, बाइक पे जा रहा है आर्मी का, गिरा है आर्मी का, किसी भी चीज़ से गिर गया आर्मी का, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आर्मी का एक्यूट इंजरी में भी अच्छा काम करती है, ट्रॉमा में भी काम करेगी। सेज
that he is well although he is severely injured. already. अक्सर ऐसा होता है कि चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आप उसको उठाने जाओगे तो मुझे तो उठाओ, मैं ठीक हूँ, आप उधर ही रहे। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि ये मुझे उठाएगा तो मुझे और दर्द हो, ठीक है। इसलिए वो क्या कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हाथ में लगाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या वो खुद भी चल के आपके साथ चला जाएगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इंजर को अच्छा खासा हुआ होगा। Very dazed, answer correctly when asked, but sinks back into previous dazed state right away. आर्मिका की खूबी है, आर्मिका को अगर आपने देखना हो कि आप इसको किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, आप पेशेंट को देखने जाते हैं तो आप पेशेंट से जाके पूछ लिया, हाँ जी क्या हाल है, आपको देखेगा, आपके सवाल का जवाब देगा, फिर सो जाएगा, ठीक है। तो सेम एक बदहवासी जो इसकी पाई जा रही होती है आर्मिका की, तो जैसे कि हमने टाइफाइड के अंदर देखा ना, टाइफाइड में आप देखते हैं कि टाइफाइड का पेशेंट जो उसको आप आके बोलते हैं जी क्या हाल है, वो ठीक हूँ, फिर सो जाए, ठीक है। आप बातें कर रहे होते हैं, वो सो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये भी बंदा जो है, अगर आप इससे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मिसाल के तौर में ये एक मिसाल दे रहे थे, तो इस तरीके के सवाल पूछे, जवाब उसने बिल्कुल ठीक बता, लेकिन फिर सो गया, फिर बर्दाश्त हो गया, फिर उसकी अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। तो ये इसके हमारे से आर्मी का बड़ी अच्छी मेडिसिन काम करने वाली थी। इसमें भी एक शेर है, ये जो बात करता है फिर सो जाता है, बात करता है फिर सो जाता है, और कहता है इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन ना कर, इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन ना कर, या तो बेहोश ना हो तो ना फिर होश में आ, ठीक है जी। तो ये एक कंडीशन है कि वो अगर हो जाता है, बेहोश होता है तो फिर होश में ना, और अगर बेहोश होने का काम नहीं करना है तो फिर बेहोशी ना हो, ठीक है, ना कर ये ड्रामेबाजियाँ। तो ये जो चीज़ है मुझे वो अच्छी लगी, मैंने इसको कॉल कर दिया, मैंने यार ये ठीक होनी चाहिए, ठीक है। दर्द क्या है, इसके पेन्स डज नॉट अलाउ द पेशेंट टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन इवन द बेड इज टू हार्ड। दर्द इस तरह की हैं कि उसको जिस तरह जितना मर्जी घर में है वो उसको इंतहाई हार्ड लगता है, सख्त लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है, पेन्स इसकी ऐसी होती हैं कि वो किसी भी हालत में सुकून नहीं कर सकता। अगर इस तरीके की कंडीशन है, वो आपको महसूस होती है, पेशेंट बताता है, तो फिर हम इसको आर्मी का इस्तेमाल करवाएंगे, अदरवाइज छोटी मोटी दर्दों के लिए आर्मी का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, उसके लिए और बहुत सी मेडिसिन। हॉट हेड एंड कोल्ड बॉडी, ये इसका फंक्शन है। जिस तरीके से हमने कैमोमेला देखा ना, कैमोमेला की बात करते हैं, कैमोमेला वन चिक रेड एंड अनदर पेल, ठीक है, अनदर कोल्ड एंड पेल। तो इस तरीके की ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ आ रही होती है हॉट हेड एंड कोल्ड बॉडी, सब जो इसका गर्म होता है और बॉडी ठंडी होती है। द टॉप हाफ ऑफ द बॉडी इज हॉट, द लोअर हाफ इज कोल्ड। तो ये चीज़ें जो है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हॉट होगी तो इसका मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन भी है, दर्द भी है, बर्निंग भी है, और जब कोल्ड होगी तो उसमें स्वेट वगैरह भी, इस तरीके की फीवर की कंडीशन में ये चीज़ पैदा हो सकती है जी। Awakening at night due to strong heart pains which extend to left elbow, ये पेन की वजह से रात को उठ जाते हैं, ऐसे करता है जैसे कि उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बोझ है, दर्द है, जिसकी वजह से उठ जाएगी, और उठ जाने की वजह से क्या करेगी, इसकी जो दर्द है वो किस तरफ जा रही होती है, लेफ्ट एल्बो की तरफ जा रही है। तो जिस तरफ हार्ट है उस तरफ इसकी लेफ्ट एल्बो की तरफ जा रही होती है। तो इसमें ये एक कंडीशन पाई जा रही होती है आर्मी का अंदर। अवर्जन टू टोबैको, stroke accompanied by a very red head and a full strong pulse। स्ट्रोक लगता है किसी भी हिस्से पे, उसको स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी हमने बात की थी, हाइपरटेंशन की बात की थी, हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से वो सदमे में चला जाता है, स्ट्रोक आता है। तो ये क्या करता है, इसमें इसका हेड जो है वो अच्छा खासा रेड हो जाएगा, और बॉडी जो है इसके तरीके से जितनी भी है इसकी हम स्ट्रोक देखते हैं, पल्स देखते हैं, तो इसकी स्ट्रोक जो वो अच्छी खासी होती है, जिसको हम कहते हैं बाउंडिंग पल्स होगी, फुल थ्रेडिंग बाउंडिंग पल्स जो है वो हमें मिलेगी, और इसका हेड जो ऊपर से फुली रेड होगा।
आर्मी, अच्छा अब इसकी खूबियाँ जी, आर्मिका के बारे में, आर्मिका में भी एक अपना स्टंट है, आर्मिका के अंदर भी एक अपनी जिसको कहते हैं ना, जिसको मैं वाला जो आर्मिका के अंदर वो भी है। जिस तरीके से कॉस्टिकम जो है कोई चीज़ अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं करती, कॉस्टिकम भी कहते मेरी चले, सेम लाइक आर्मिका भी कहते मेरी ही चले, लेकिन दर्दों के हवाले से, ठीक है, दर्दों के हवाले से इसकी मेंटालिटी इस तरीके से हो चुकी होती है कि वो किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, एंड थिंक्स दैट ही नोज बेटर देन एनीबॉडी एल्स, तो कहता है मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ, ठीक है, मैं किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। ये सल्फर या फिर आर्सेनिक कहते हैं, सल्फर के अंदर भी ये चीज़ होती है कि मैं उनसे अच्छा जानता हूँ, तो ये भी आर्मी का कहता है मैं उनसे अच्छा जानता हूँ, ठीक है जी। ये टेम्परामेंट की हम बात कर रहे हैं, चारों पांचों टेम्परामेंट इसी के अंदर पाए जाते हैं। बात करता है ही बॉट्स एंड ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली प्लांटना, जो इसकी जो बॉट्स और ब्रेक्स हैं एकदम से आपे से बाहर हो जाना, एकदम से जो क्या करते हैं उसको क्या करते हैं अपना आप खो देना, अपने हवा से बाहर निकल जाना, ये इसकी प्लांटिना की तरह की है। और इसी तरीके से डिक्टेटोरियल पाया जा रहा है, हुक्म चलाने वाला, लाइकोपोडियम की तरह है, इसी डोमिनेटिंग होता है, डॉगमेटिक होता है, इसी तरीके से स्पॉटिक होता है, और टॉक्स विद एन एयर ऑफ बीइंग सुपीरियर और इन कमांड, कहता है कि जो ऊपर भी चल रहा है ना वो मेरी वजह से चल रहा है, ठीक है, इतनी ही उसकी बातें होती हैं। या फिर सिमिलर टू प्लांटिना, और एक प्लांटिना की होता है लाइकोपोडियम की तरह होता है, कॉस्टिकम की तरह, चारों पांचों तरह एक ही अंदर पाई जा रही है, ठीक है, एक ही मेंटालिटी के अंदर इसको कवर किया जा रहा है। तो ये भी आर्मिका का एक अपना म्यार है, जिसकी वजह से हम उसकी मेंटालिटी के हवाले से लेते हैं, जिसको हम शौक की तरह लेके जाते हैं, जिसमें हम उसके जो नर्वस सिस्टम को, साइकोस्पाइनल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। आर्मिका डज नॉट विश टू टॉक टू, किसी से बात करना भी नहीं चाहता, और टू बी अप्रोच्ड बाय अदर ऑन अकाउंट ऑफ दिस मेंटल, और किसी दूसरे की तौहीन भी करना चाहता है। मेंटली तौर पर इसका ये है कि किसी दूसरे की तौहीन करना, ये इसकी मेंटलिटी की सिम्टम है। इमोशनल और फिजिकल सॉरनेस, ये जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर इसको बहुत ज़्यादा दुखन महसूस होती है। ही मे टेक अ वॉक इन ओपन एयर, खुली हवा में ये चलना पसंद करता है, और एंड लिव विद हिज फैंटेसीज, फैंटेसीज क्या, अपने ख्यालात में रहता है, बात नहीं करना चाहता, अकेला ही बात करना चाहता है और अपने ख्यालात में रहता है। एंड वंस बैक फ्रॉम सच अ वॉक he will want to continue to live with the emotions he had on the walk, क्या कहते हैं, चलते हुए, वॉक करते हुए, सैर करते हुए, कुछ भी है, अपने ही इमोशंस में अपने ही हाथ तक रहता है, वॉक करता है विदाउट टॉकिंग टू एनीबॉडी, और किसी के साथ बात नहीं करता। अगर दो बंदे सुबह के लिए सैर के लिए चले जाएं तो एक बंदा उसके साथ बात ही नहीं करता, एक्सरसाइज करके घर आ गया लेकिन बात नहीं की, कहता है ही विशेस ओनली टू बी साइलेंट, कहता है अगला बंदा चुप रहे, खुद भी चुप रहे और अगला बंदा भी चुप रहे, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। आर्मी का केसेस में अगर हम देखें, पीपल हु मे अपीयर टू बी सोशल, ये दुनियादारी में जाते हैं, मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर मिलते हैं लोग मुआशरती तौर पर, बट आर सो ओनली ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, लेकिन अपना लेवल ज़्यादा दूर ही रखते हैं, ठीक है ना, ये उससे बात नहीं ज़्यादा करते, ठीक है। वो अक्सर आपने देखा होगा घर से निकलते हुए खाना जो बेगम को कहा ओ ज़रा गल तो काफ़ी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम है कि उससे बातचीत कम ही रखे। दे आर लोनर, ये अकेले होते हैं, अकेले बनकर शिकार, अकेले रहते हैं। डॉटलेस ड्यू टू देयर फियर दैट अदर्स में हर्ट देयर फीलिंग्स ऑन कमिंग इनटू क्लोज कांटेक्ट विद देम, कहते हैं अगर कोई बंदा मेरे नज़दीक हो गया ना तो हो सकता है कि मेरे नज़दीक हो गया, मुझे नुकसान ना पहुंचे, मेरी बातों का इसको पता चल गया तो ये मुझे हर्ट ना करे, मुझे तकलीफ ना पहुंचाए। दे मे बी कंपेयर टू वुंडेड एनिमल्स दैट वांट टू हाइड एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी प्रोटेक्ट। आप इसकी मिसाल एक जख्मी जानवर से ले सकते हैं कि आप उसके पास जाएं लेकिन वो अपने आप को छुपा लेता है कि कोई बंदा मुझे आकर छू ना ले ताकि मुझे तकलीफ से बचत हो जाए। दे डेवलप एन एवर्जन टू सिंपैथी और कंपैशन, क्या करता है वो किसी की हमदर्दी, किसी की सिंपैथी लेना पसंद नहीं करता। वो कहता है ठीक है भाई ठीक है, वो बीमार भी पड़ा तो वो कहता ठीक है ये आएगा मेरे घर, इसको पता चलेगा
اب وہ مثال کے طور پہ ایک بندہ تو آیا اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے اس کو دور ہی رہنا چاہیے، کہیں مجھے کل کو بات نہ کرے، اس کا ایک اپنا معیار ہے. دیئر لونر، یہ جو ہم پیچھے بات کر کے ہیں کہ اپنے ایک دوسرے اپنا جو ہے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا کہتا ہے، یہ ایک شعر کے حوالے سے ساگر کا شعر ہے، بات کرتا کہتا ہے نکتہ چینی ہے سب احباب کا شیوا ساگر، نکتہ چینی ہے سب احباب کا شیوا ساگر، اس لیے اپنے ہی گفتار سے ڈر لگتا ہے، وہ نہ ہو یار تو بات ہی کر دے، تو اس لیے اپنے ہی بولنے سے ڈر لگتا ہے. تو اس طریقے کا یہ ساگر کا شعر اس چیز کو عکاسی کر رہا ہے، یا ہم نکل ہو گیا عکاسی کرنی ہو تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. Fear of others approaching him lest be brutal. وہ کہتا ہے کہ کسی کا پاس آنا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے پاس ہے، اس کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہ آئے. Has fear, apprehension, dread of being struck by those coming towards him. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی چیز کے اندر دھنس کے رہ گیا ہوا ہے، یہ اس کا فیئر ہے. Etc. In the near future. اچھا جی، یہ بات کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے. میں نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ ہم اس کے کرونا کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، تو ہم اس میں بات کر رہے تھے یہ والی چیز کی. آج جو بات ہو رہی ہے آپ اس چیز کو امیجن کرتے گا ذرا، یہ بات ہوگی ٹو ہم ایٹسیٹرا ان دا نیئر فیوچر، آنے والے دنوں میں. یہ آج سے 200 سال کی بات ہوگی، 200 سوا 200 سال کی بات ہوگی. جب 1805 میں بھی 2005 میں پورے 200 سال ہو جاتے ہیں، اوپر 15 سال بھی ہو گئے. 215 سال کی بات ہے جب ہانیمن بات کر رہا ہے، جب لوگ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان دا فیوچر نیئر فیوچر وی ول سی proof of existence of areas in the human brain concerned with the instinctual mental defenses of humans. سمجھے اس چیز کو؟ کہتا ہے نیئر فیوچر میں ایک وقت آئے گا، مستقبل قریب کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مستقبل قریب کی بات کر رہا ہے کہ اس میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں رہیں گے، وہ دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے. سیم ایک یہ چیز ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایک چیز آ جائے گی، یار میں اپنا ذرا فاصلہ بڑھا کے رکھوں، کوئی میرے پاس نہ آئے. سیم ہے یہ ایک میں نے ورڈنگ دی ان ماڈرن ورلڈ. یہ ماڈرن ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات ہو رہی ہے. آج بھی یہی ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی اپنے پاس ہی رہو، ادھر ہی رہو، ٹھیک ہے. سیم لائک کرونا کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، سیم لائک کرونا کی بات ہے، کہتا ہے میرے پاس کوئی نہ آئے، اگر میرے پاس آیا تو ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے، ٹھیک ہے. سیم لائک یہ کنڈیشن ہے. تو یہ جو ڈیفینسز آج 1805 میں جو بات کہی تھی وہ آج 2020 کی بات ہو رہی ہے، جس میں یہ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے، اپنے ہی ڈیفینس سسٹم میں رہیں گے، اپنے ہی حالے میں رہیں گے، اپنے ہی دائرے میں رہیں گے. وہ چیز یہاں پر آج محسوس ہو رہی ہے. تو یہ آرمی کا اس کے ساتھ ہی ہم توڑ لیتے ہیں. ہم آنے والے فیچرز کے بارے میں بھی بات کریں. These states appear especially after an accident. یہ کنڈیشن کب ہوتی ہے؟ جب خاص طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، خاص طور پر there is a kind of cardiac distress. مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی قسم ہو جس میں دل کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، دل کے معاملات ہیں. and anguish that originates from the heart region. دلی طور پر اس کو تکلیف ہو. a feeling that the heart will give in suddenly and he will die instantly. کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہارٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ ایک دم سے بند ہو جائے اور ایک دم سے اس کی موت کا کیا ہو گئے. the idea of dying instantly is characteristic of arnica. اگر کوئی معاملہ میرے پاس آیا اس طریقے کا ہوگا، دل بند ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تو یہ اگر ہوتا تو آرمیکا پرفیکٹ ہے. یہاں پہ ڈسکرائب کرتا ہے اس چیز کو، کینٹ کرتا ہے جی رات کا خوف، اور اس کے ساتھ فریکوینٹلی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے رات کے وقت پہ اور اپنے دل کو پکڑ لیتا ہے، اسی کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے. اچھا مینٹل جرنل کی بات کریں. یہ مینٹل جرنل میں اس کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ہم پچھلے پڑھ کے آ چکے ہیں. اسٹرک ہو جاتا ہے، انسٹنٹ ڈیتھ کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسپیس میں جانے کا دعویٰ ہے اس کا.
क्राउड की वजह से डर है, पब्लिक प्लेसेस पे डर है एंड अवेकनिंग लग जाता है, वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला रहना चाहता है। टू डॉक्टर गो अवे, क्रिटिकल एंड ऑल्टरनेटिव, ऑब्स्टिनेट एंड डिफिकल्ट। ये जो बंदा होता है इस तरीके का, इसमें बात कर रहा है, अकेला रहना चाह रहा होता है, अकेला रहना अपनी दर्दों की वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से अकेला रहना चाह रहा होता है, और डॉक्टर को भी कहता है आप चले जाए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में हो सकता है कि वो बातें भी कम करना शुरू करे, ठीक है, टेक्निकल कम जवाब दे किसी बात का, रिफ्यूज टू टॉक, बात करना छोड़ सकता है, बात नहीं करेगा, छोड़ देगा, नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगा। इनॉक्शियस देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर में फ्रॉम पेन, दर्दों के हवाले से, एक्साइटेड एंड इल ह्यूमर विद इट, इसके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इल ह्यूमर, उसकी जो तबाह है, उसकी जो तबीयत है वो खराबी पैदा कर रही होती है। इसमें काम क्या करता है, मे बी कैप्रेशियस इन हिज हर वांट्स, अपनी ख्वाहिशात में वो क्या करता है, शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार कर सकता है। He will say this even when he is seriously ill, ये उस वक्त कह सकते हैं जब वो अच्छा खासा बीमार हुआ पड़ा हो। आई हैव सीन एन आर्मी का पेशेंट, ये पेशेंट के हवाले से डॉक्टर जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर कैंप की बात करता है कि मैंने ऐसे सीरियस मरीज को देखा है, आर्मी का के पेशेंट को, फिर पीछे अगर चले जाए तो उसको क्या करता है, lie back upon his pillow after emptying the stomach of a black fluid like blood। कहता है वो जब पखाना कर लेता है या वो वॉमिटिंग कर लेता है, उसकी जो वॉमिटिंग है वो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग जो होती है वो क्या है, ब्लैक कलर की है, और उसके बाद वो किस तरीके से लेट जाता है, तकिया रख के, ऊंचा तकिया रख के लेट जाएगा और आराम स्कूल से लेटा रहेगा। सीरियसली जब वो शिद्दत का बीमार हो, विद द फेस मोटेड, और चेहरा जो है उसका क्या होता है, मुरझाया मुरझाया सा महसूस होता है। इन ज़ाइगोटिक सिकनेस, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है, और सच एज थ्रेटन मैलिग्नेंट चिल, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसको सर्दी बहुत शिद्दत की लगेगी। दैट वन वुड थिंक ही वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, और ऐसा महसूस होगा जैसे कि अब वो मरने की तरफ जा रहा है। लुक अप एंड से, देखता है और कहता है, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। आई डिड नॉट सेंड फॉर यू, गो होम, डॉक्टर की तरफ देख के कहेगा कि मैंने आपको नहीं कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, आप जा सकते हैं। ये क्या है, ये उस वक्त पेशेंट को देखा गया जब वो अभी मरने की स्टेज पर पड़ा हुआ है, जब वो बिल्कुल नियर डेथ पड़ा हुआ, उस वक्त उसकी यही कंडीशन होती है, मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस तरीके की उसकी मेंटालिटी हो चुकी रहती है। इस तरह की हालत में एक और चीज बयान करता है कि दैट मैन इन अ स्टेट ऑफ हेल्थ, सेहत की हालत में ही वाज फ्रेंडली, वो दोस्ताना माहौल में रहता है, काइंड हार्टेड, बड़ा नरम मिजाज रहता है, नरम दिल का होता है। न्यू डॉक्टर, वेल डॉक्टर को अच्छी तरह जानता है, जब उससे मिलता है वो खुश होता है, हाथ मिलाता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो वो इरिटेट हो जाता है। एट सीइंग डॉक्टर, और डॉक्टर को देखते ही, जब डॉक्टर को देखता है बीमार होता है, इरिटेट होता है, डॉक्टर को देखते ही वो क्या करता है, उसके साथ बदतमीजी के उतर आता है, और उससे किसी भी तरह की बात करने पर रजामंद नहीं होता, उसको रिपेल करता है कि मैं आपको नहीं जानता, आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको किसने बताया, आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसने बताया। अक्सर आपने 70-80 साल के बुजुर्गों को देखा होगा कि आपने वो आप बच्चे जो हैं वो डॉक्टर को लेके आते हैं, आप हमारे अबू को जानते हैं, आपके पास से वो इलाज करवाते रहे, तो ज़रा उनको दे रहे, तो वो जब उसके पास लेके जाते हैं वो बोला आपको किसने बताया, मैं आपको जानता ही नहीं, अब चले जाए, आपके बेटे ले गया, मैं तो ठीक हूँ, ठीक है। हो ज़्यादा गालियों पे आ जाए, हो ज़्यादा बदतमीजी पे आ जाए, ठीक है। तो ये आर्मी का कंडीशन में मेंटालिटी हो रही है। आर ग्रेड ऑफ पुअर इंटेलेक्चुअल, अगर इसके इंटेलेक्चुअल लेवल को देखें तो तमाम ग्रेड इसके पुअर होंगे, ठीक है। जैसे कि फंक्शन की बात, फंक्शंस की बात करें, इंटेलेक्चुअल फंक्शन की बात करें, डिलीरियम एग्जाम में पढ़ा होता है तो कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में पड़ा, डिलीरियम ट्रेमेंस, और हिजान के अंदर उसको कुछ झटके भी लग रहे होंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन टू, ये जो तकलीफें उसको पैदा हुई हैं वो दिमागी परेशानी की वजह से, दिमागी मामला की वजह से पैदा हुई है।
becomes indifferent and lazy, जिसकी वजह से वो ज़रा मुख्तलिफ हो गया, ज़रा बदतमीज़ हो गया और ज़रा लेज़ी हो गया, ढीला पड़ गया है। द रफ एंड डम्बल, और ये जो चीज़ होती है उसको उसने क्या किया हुआ है, वो बेचैन कर दिया हुआ, डम्बल हो चुका हुआ, रफ हो चुका हुआ, अपने अपने उसके ख्यालात जो है वो क्या, उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको बदतमीज़ सा हो जाता है, खुरदरा हो जाना, बोल बुलार में ज़रा उसका मामला बिगड़ जाना, ये हो जाता है। आई डोंट माइंड एंड यू डोंट मैटर, मैं इसको अच्छा नहीं समझूंगा, आप भी इसको रबा जान लीजिए। ये एक चीज़ बड़ी बात करता है, कहता है स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, कहता है कि ये जो लकड़ियाँ या ये जो पत्थर हैं या इस तरीके की चीज़ें वो मेरी हड्डियों बस्तियों को तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी, अल्फाज मुझे जो है वो तकलीफ नहीं दे सकते। तो जैसे बड़ी अच्छी बात करते हैं, तो एक पठान बंदूक उठा के लेके जा रहा था, ठीक है, और पंजाबी खड़े होकर उसने कहीं मजाक से बोला, बाबा क्या बात है, बंदूक उठा के ले जा रहा है, मारना किसी को? तो क्या कहता है, तो कहता नहीं पुत्र, मारना किसी को क्या है, मार तो बंदा बातों से जाता है, ये बंदूक तो सिर्फ जानवरों को मारने के लिए रखी हुई है। तो सेम लाइक यही चीज़ है, ये जो बंदा वो क्या करता है, आपके अल्फाज मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से मुझे तकलीफ होगी, मेरी हड्डी पसली टूट सकती है, मुझे तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपके अल्फाज मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, ठीक है। जी उसका उल्ट है जी। हॉरर है जी, किस चीज़ का खौफ है उसको जी, इंस्टेंट एकदम से मौत का खौफ है, कार्डिक डिस्ट्रेस का है, जैसे कि रात के वक्त उसका दिल बंद हो जाएगा, इसका खौफ है। फ्रॉम दैट इज स्प्रेड्स ऑन थ्रू आउट द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में फैल चुका होता है। बट दैट हॉरर ऑफ इंस्टेंट डेथ इज अ स्ट्राइकिंग फीचर एंड इट कम्स ऑन रिगार्डलेस ऑफ हार्ट डिजीजेज। और ये क्या करते हैं, ये जो हार्ट की डिजीजेज है या इस तरीके का हॉरर है, और उसको क्या करते हैं, इस तरीके का उसको लेकर चलते हैं, हार्ट की डिजीजेज में डेवलप करते हैं इसके फीचर्स को, तो उस तरफ लेके जाएगा, इंस्टेंट डेथ की तरफ ले जाएगा। अ हॉरर इन द नाइट व्हेन देयर इज नथिंग to come upon the patient, a horrible congestion which affect especially the cerebellum and upper part of the spinal cord। ये जो हॉरर है ये रात के वक्त में जो हो जाता है, ये किसकी वजह से वगैरह जो इसका नहीं आता पेशेंट में, इस तरीके का नहीं आ सकता, लेकिन क्या है हॉरर किसकी वजह से, कंजेशन की वजह से हो सकती है, इफेक्ट करती है खासतौर पर कौन से, सेरिब्रम की कंजेशन और सेरिब्रल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो हिस्सा, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कंजेशन अगर पाई जा रही है तो उसकी वजह से इस तरीके का इसका हॉरर पैदा हो सकता है। स्टूपर विद इनवॉलंटरी डिस्चार्ज, ये मदहोश पड़ा होता है, जिसके साथ जो उसके बे इख्तियारी में पखाना भी, स्टूल भी और पखाना भी और क्या कहते हैं यूरिन भी निकल जाता है, ठीक है, पेशाब भी। ये देखिए, ठीक है जी, ये हम बात करते हैं, ये वाला जो चीज़ है ये इधर पड़ा हुआ सेरिबेलम, ठीक है जी, स्पाइनल कॉर्ड और इससे ब्रेन से, तो ये जो ऊपर का एरिया सेरिबेलम, इसका क्या है सेरिबेलम वगैरह जो है, सेरिबेलम ऊपर पड़ा हुआ, तो इसको क्या करता है, इसमें अगर कंजेशन आ जाती है, ठीक है, इसमें कंजेशन आ जाती है, तो इसका जो प्रॉब्लम बनेगा वो क्या है, डेथ का, हॉरर डेथ की तरफ लेके, इंस्टेंट डेथ की तरफ उसके द्वारा आएंगे। कभी ये रेमडी क्या करते हैं, इज फुल ऑफ डिलीरियम, हिज़्यान के अंदर पाया जा रहा है, बदहवास है, मदहोश है, उसमें हो जाता है दीज लो टाइप्स ऑफ फीवर, ये हल्के बुखार में होता है, टाइफाइड टाइप के, टाइफाइड में हल्की नोयत का बुखार होता है, ठीक है, तो हल्का हल्का बुखार होता है लेकिन रहता है। इवन डिलीरियम लाइक डिलीरियम ट्रेमर्स, या इस तरीके से देखे जा सकते हैं कि इस डिलीरियम के अंदर झटके भी लगते हैं, ट्रेमर्स भी आते हैं, होपलेसनेस होता है, इंडिफरेंस होता है, क्या कहते हैं उसको कुछ चीज़ ना उम्मीद होता है, होपलेस होता है, हाइपोकॉन्ड्रियल एंजाइटी होती है, पीविशनेस होता है, यहाँ पे आगे बदतमीज भी हो जाता है, जिद्दी भी हो जाता है, ठीक है, पीविश जिसको हम कहते हैं कि जो अल्फाज जो मिलते हैं कम्युनिटी की तरफ मिल जाते हैं कि वो इस तरीके का पीविश हो जाता है। दैट इज बोथ बॉडी एंड मेंटली, ये जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर, दोनों तरह से। जिस्मानी तौर पर क्या है कि वो अपने बाहर से किसी को नहीं आने देता, ठीक है, मेंटली तौर पर क्या है कि अपने दिमागी अलामात उसको नहीं बताता, दिमागी तौर पर उसको बताता ही नहीं कि मैं इस तरीके का पर्सन भी हूँ। ये देखेंगे, ये कंडीशन कुछ पाई जा रही होती है इस कंडीशन में जो चीज़ें हैं वो
होपलेसनेस में, ठीक है जी, इंडिफरेंस है, ऑटोमेटिकल है, और इसकी एक्टिवेशनेस है जी, सेम एक्टिवेशनेस की ये शक्ल होती है, ठीक है, इसकी तीन चीज़ें होती है जी। ये एक लफ्ज़ है लिमेंटिंग। लिमेंटिंग क्या है? लिमेंटिंग क्या है? बी मॉर्निंग वेलिंग ऑल्टरनेटिंग विद एंगर। ये इसका जो एहसास हो लिमेंटिंग किसी गम के अंदर जाके बैठ जाना, ये एक रूब्रिक है रेपर्टरी के हवाले से, इसको नोट डाल लेंगे, उसमें शायद ना हो, ठीक है। लिमेंटिक एक रूब्रिक है जिसमें वो क्या कहते हैं कि आहंग भी भागा होता है, किसी गम की वजह से बैठा भी होता है, परेशान भी होता है, तो ये जो कंडीशन है उसमें रोना और गम पाया जाना, बुढ़ापे के अंदर भी आ जाना, ये सारे सिस्टम जो है ये भी इस तरीके से डेवलप हो जाती है।